Hello everyone, I'm filming this video around midnight. It is a chilled winter night and I'm going to call this particular series of video the diary entry. It is just like something that I'm writing in my diary. और ये वीडियोस आर नॉट लाइक अ हाउ टू गाइड कि आपको एक सर्टन थिंग अचीव करना है या कोई इशू रिजॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे या आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग दैट आर इन माई अवेयरनेस और स्पिरिचुअलिटी में आपको कोई चीज़ करनी नहीं पड़ती है। आई मीन इन द लेवल ऑफ कि अच्छा आप ये कर लोगे मतलब आप स्पिरिचुअल हो, मतलब टिपिकली हम सोचते हैं कि जो रुद्राक्ष पहन के घूमते हैं या जो मैटेड हेयर लेके आते हैं, ऑरेंज कपड़े पहनते हैं, दुनिया छोड़ देते हैं, ऑल ऑफ दोस पीपल आर स्पिरिचुअल। बट आई वॉन्ट टू डिफाइन वॉट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर मी. It started with the point that I'm something more than this mind and body. With this question that what am I and who am I, and I'm still staying with that question. I have not got the answer yet, and that answer is not like एक कॉन्सेप्चुअल आंसर जो ऑफ कोर्स हमारे स्क्रिप्चर्स में है, उपनिषद में है. दैट इज़ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन बहुत अलग बात होती है. तो हमारी मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी इज़ कि जो भी क्वेश्चन दिमाग में आता है वो चाहे माइंड से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, उस क्वेश्चन के साथ ठहरना और उसकी डेप्थ तक जाना ताकि एक बहुत बड़ा जो एंटेंगलमेंट है वो सॉल्व हो सके. और वो एंटेंगलमेंट जैसे सॉल्व हो जाता है तो हमारा परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है एंड वी स्टार्ट फीलिंग लाइटर, वी स्टार्ट फीलिंग I don't even have the words to express that. Ki you just feel that you are not just a small part. You're something beyond that and you're something more than that. So I think that is spirituality for me. That exploration is spirituality for me. Because whatever I have read in the scriptures, whatever I have understood from the texts that are present, it is yoga, it is union, it is understanding that you and me are not separate. When I am in this identity, when I'm calling myself Rituja, I'm a separate individual with certain characteristics. But when I go to sleep, where is Rituja? In my awareness, there is no Rituja, right? So when we sleep, there is no Rituja, there is no identity, and I have just merged into the existence, into the creation, whatever you want to call it. So I'm existing, my body is there, but Rutuja nahi hai, right? So when this questioning became deeper and I got the knowledge of Upanishads along with it, so I really thought, yeah, this is fantastic, this is so true. But there is an observer, because then how do I know that Rutuja was sleeping, right? So if you are really interested in this sort of stuff, please go and see the lectures on Mandukya Upanishad by the New York Society. I will share the link in the description if I find them. And my starting point of getting into the inquiry part of the knowledge was through reading the Mandukya Upanishad, which is wonderful. How crisp it is and how well that Swami has explained is amazing. So, what happens is that when you are staying with questions and when you stay with questions like these, your mental capacity to solve any kind of problems like really increases, really increases, and you don't even know that it is happening, but it is happening. और जब आपको ऐसा इंटेलिजेंस मिला है, सो यू हैव टू गिव योर इंटेलिजेंस सच क्वेश्चंस, अदरवाइज वो जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट भी नहीं करती है उनको सॉल्व करने के पीछे चला जाएगा. सो इफ़ यू कम फ्रॉम द इंटेलेक्ट बैकग्राउंड, इंटेलिजेंट लोगों का बैकग्राउंड, गिव योर सेल्फ सच क्वेश्चंस. और ये बस स्टार्टिंग पॉइंट है. आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या आपके अंदर इमोशन ज़्यादा है, ये सब स्टार्टिंग पॉइंट्स है. तो उसके हिसाब से आप कोई भी स्पिरिचुअल पाथ चूज़ कर सकते हो टू स्टार्ट विथ. बट बाद में ये लेबल्स भी हटने लगते हैं.
कि आई कम फ्रॉम मोर ऑफ एन इंटेलेक्चुअल, ये फिर कोई बोलता है कि नहीं मेरे अंदर भक्ति ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है, बट एक पॉइंट के बाद आप ये लेबल्स भी ड्रॉप कर देते हो एंड ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। तो आज के लेसन्स जो आज मेरे अवेयरनेस में आए, मैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जब मैं अपनी लाइफ कोच के साथ ही मैंने आज एक रिकॉर्डिंग की एंड आई पोस्टेड दैट, ये शायद मैं कल पोस्ट करूँ ये वीडियो, बट उन्होंने एक चीज़ बोली दैट समटाइम्स what we do is that we are suffering our suffering। मतलब कि सपोज दांत में दर्द है, ठीक है, और वो दांत निकल गया, बट उस पॉइंट पे दर्द होगा ही होगा, यू नो। भले ही आपको पेन किलर दिया हो, कुछ भी दिया हो, उस मोमेंट पे आपको थोड़ा सा दर्द होगा, और उसके बाद वो दर्द चला जाएगा। आफ्टर सम टाइम व्हेन इट हील्स ऑटोमेटिकली वो दर्द चला जाएगा। बट अगर आप बस उसके बारे में सोचते रहे, सोचते रहे, अगर आपका दांत निकलने वाला है इसको लेकर पहले से ही सोचने लग गए, वो ऑलरेडी सफर्ड दैट, यू जस्ट वो चीज़ होने से पहले ही आपके सिस्टम में सफरिंग क्रिएट कर दी। तो दैट मीन्स ये बस एक एग्जाम्पल है। तो आई वॉन्टेड टू इलेबरेट ऑन वॉट शी वाज ट्राइंग टू से। उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आई वोंट रिपीट हर एग्जाम्पल्स। आई एम गिविंग यू सम अदर एग्जाम्पल्स दैट पेन बहुत बार एक लिमिट का होता है और वी हैव टू फील द पेन। एक बहुत अच्छा डायलॉग है एक मूवी का, दैट पेन डिमांड्स टू बी फेल्ट। सो फील द पेन, पेन विल ऑटोमेटिकली गो, बट आवर माइंड इज केपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग एवरीथिंग। सो हम लोग वो भी एम्पलीफाई करने लगते हैं, एंड आई कॉट माई सेल्फ ऑल्सो डूइंग दैट। एंड so, what was the pattern which was making me do that? I identified that particular pattern, the lack that I was coming from. वो जब मुझे पता चला तब मैं समझ गई कि अच्छा इसका रूट कॉज क्या है। और आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दैट मेस अगेन, बट मेरे लिए वो मेस में जाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं वहीं से बहुत ज़्यादा सीखती हूँ और उसी से शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग और प्रोफाउंड होती है, मेरा पर्सपेक्टिव और वाइड हो जाता है, और मैं किसी को फिर उस चीज़ में गाइड कर पाती हूँ, किसी को सिखा पाती हूँ। तो आई हैव बिकम, आई हैव कम टू पीस विद दिस फैक्ट that transformation is going to be a constant theme in my life, and I want it to be a constant theme because मेरी identity time to time shift होती रही है, और कुछ सालों में तो बहुत rapid, there have been rapid changes and rapid shifts, and I am loving all of that, and like I always say, all is welcome, and I am following the path of least resistance. मैं पहली बार ये ऑनलाइन बोल रही हूँ, but I'm really following the path of least resistance now from here on, because that's so natural. It's very very natural. और I'm going to read out something that there is no way to make the finite happy and the infinite unhappy. मतलब कि जब हम हमारे ईगो में रहते हैं, ईगो मतलब प्राइड नहीं, अहंकार नहीं, जो हमें लगता है कि ओ ये बहुत घमंडी है, ओके, ईगो इज़ नॉट घमंड, बट अहंकार इज़ द एक्चुअल वर्ड फॉर इट, विच मीन्स कि आइडेंटिटी, मैं ऐसी आइडेंटिटीज़, जैसे पता है मैं बोलूँ कि मुझे और बड़ा घर चाहिए और गाड़ियाँ चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, विदाउट रियली थिंकिंग कि ये मेरा ट्रूली डिज़ायर है क्या। तो जब हम एक फाइनाइट आइडेंटिफिकेशन में होते हैं ना, और हम हमेशा फाइनाइट आइडेंटिफिकेशन में ही होते हैं, नो मैटर, अगर जब जिस दिन हमने खुद को उस इनफाइनाइट की तरह एक्सपीरियंस कर लिया जो हम एक्चुअली में है, तो उस इनफाइनाइट को कोई अनहैप्पी नहीं कर सकता, क्योंकि दैट इनफाइनाइट इज़ द यूनिवर्स इटसेल्फ, दैट इनफाइनाइट इज़ द क्रिएटर इटसेल्फ। तो उससे खुश रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो ज़िंदगी जीने के ना, देर आर टू मोड्स, एंड आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ द बेस्ट मोड एंड दिस इज़ द खराब मोड, आप इसमें जियो उसमें जियो, ऐसा नहीं है, बट जस्ट बी अवेयर कि इस वक्त आप कौन से मोड में हो। और
फिर आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से पैटर्न्स चेंज करने की ज़रूरत है आपके अंदर, क्योंकि आप यहाँ से वापस ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे सिस्टम का और रिलैक्सेशन होता है उसको एक्सपीरियंस कर सको नेचुरली। जैसे मैंने बोला द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, तो उसमें जैसा भी आपका नेचुरल पाथ है वो आप फॉलो करोगे। बट जब हमारी ईगो उसमें सफरिंग क्रिएट करती है, जब हमारा ईगो रेजिस्ट करता है, जब हमारा ईगो डिनाई करता है, जब हमारा ईगो सप्रेस करता है, मतलब कि मुझे ये प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करना, यू वांट टू रन अवे फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, तो वहाँ पे सप्रेशन आ जाता है। सप्रेशन इमोशनल बॉडी में आता है, फिर फिजिकल बॉडी में आता है, एंड इट क्रिएट्स अ फिजिकल हेल्थ इशू एज वेल। सो दिस इज़ द होल साइकिल ऑफ इट। अगर नेचुरली कभी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कभी एक्सपेंशन हो रहा है, और आप उसको उसके साथ बस आप चल रहे हो, तो आपकी हेल्थ के लेवल पे आपको बड़े इश्यूज नहीं होंगे। आपकी आपकी सफरिंग इतनी जो आप कहते हैं ना एक्सप्लोसिव सफरिंग नहीं होगी। सो दीज वीडियोज़ जो मैं बना रही हूँ दे आर फॉर द पीपल who are interested in spirituality. So next time आप डायरी एंट्री देखोगे तो समझ जाना कि किसी टॉपिक पे डीप में बात होने वाली है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की मैं ये बात कर रही हूँ, एक है कि लैक से आने वाली जगह। लैक मतलब क्या, कि मेरे पास अभी फाइनाइट आइडेंटिटी है, मेरी फाइनाइट रिसोर्सेस है, सब कुछ फाइनाइट है, और उस फाइनाइट से हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस ऐसे हुआ कि आपके पास क्ले है, क्ले से एक अमाउंट ऑफ क्ले है, उससे कुछ बनाने की कोशिश करे, पॉट्स बनाए, फिर आपने उसको बेचा, फिर आपको उसके पैसे आए, फिर पैसे से आपने खाना खरीदा, फिर आपने वो खाना खाया। दिस इज़ अ वे जिसमें हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप जितना आपके पास रिसोर्स होगा स्टार्टिंग में उसके हिसाब से आप जीते रहोगे, और जितना इंटेलिजेंटली उस रिसोर्स को यूज़ करोगे वैसे जीते रहोगे, बट वो लिमिटेड है। और देर इज़ समथिंग इनसाइड अ ह्यूमन जिसको सेटल नहीं होने देता, जिसको बोलता है कि देर समथिंग मोर टू लाइफ, आई नीड समथिंग मोर। वो बस ग्रीड नहीं है, और वो बस पैसे की ग्रीड नहीं है, दैट बीइंग वांट्स टू एक्सपैंड। सो आप जब तक उस लैक से अबंडेंस में शिफ्ट नहीं होते, आपको सेंस ऑफ ईज एंड सेंस ऑफ पीस फील नहीं होता। तो उसमें शिफ्ट मतलब वो स्पेस कैसी लगती है, वो स्पेस ऐसी है कि आई एम हैप्पी, और मैं हैप्पीनेस से कुछ क्रिएट कर रही हूँ, तो उसके अंदर भी वो हैप्पीनेस वाला एलिमेंट रहेगा, मतलब उसके अंदर भी वो पीस वाला एलिमेंट रहेगा, उसके अंदर भी वो अबंडेंस वाला एलिमेंट रहेगा। तो वहाँ पर मुझे खुश रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं खुशी से करूँगी। देयर इज़ अ डिफरेंस यहाँ पे। पेट भरने के लिए, खुशी के लिए, ये पाने के लिए, वो पाने के लिए, ये चाहिए वो चाहिए, आप उस स्पेस से एक्ट करते हो। और यहाँ पे ऐसा है कि आप खुशी से एक्ट करते हो। यहाँ पे आपको आपका माइंड यूज़ करके काम करना पड़ता है। यहाँ पे जब आप स्टेट में रहते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है, अपने आप पर काम कर रहा होता है। और कभी कभी तो देर आर स्टेट्स वेर माइंड का भी आपको ये नहीं रहता कि आई विल नॉट गेट वेरी मच इन टू डेप्थ ऑफ दैट, क्योंकि वो बातें अगर एक्सपीरियंस में, मेरे भी बहुत थोड़े से एक्सपीरियंस में है, तो मुझे जब उस पर बेटर नॉलेज और एक्सपीरियंस होगी आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। बट यहाँ पे आपके माइंड पर काम हो रहा होता है, आपकी परसेप्शन बढ़ रही होती है, आप सिर्फ आपके थॉट को लेकर आइडेंटिफाइड नहीं होते। सो दीज आर टू मेजर डिफरेंसेस। वन इज कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ लैक, कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डिस एम्पावरमेंट, वन इज कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ एम्पावरमेंट। और दोनों की अपनी जगह है, एक दूसरे से बेटर नहीं है। बेस्ट इज यू बीन द अवेयरनेस कि अभी आप कहाँ पे हो, और वहाँ पे यू ब्रिंग अवेयरनेस टू द पैटर्न्स। फिर which patterns, what is it, what is underneath it, and what is underneath this abundance, ये कहाँ से आया। बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके आंसर्स कोई किसी को दे नहीं सकता है, ये चीज़ें खुद को खुद के लिए देखनी होती है। बट व्हेन यू रियलाइज इट एंड व्हेन यू फील इट, you are in a plane of, I don't even I'm not even getting the word to express it, because जब मैं इसके बारे में बात करने लगती हूँ तो मुझे वो फील होता है, सेंस होता है
एंड मेरी अवेयरनेस खुद इतनी बढ़ जाती है कि मैं उस स्टेट में बस होती हूँ, वो इक्वानिमिटी के स्टेट में होती हूँ, वो पीस के स्टेट में होती हूँ। तो मैं बस उस स्टेट में प्रेजेंट होती हूँ और मुझे कभी कभी वो एक वर्ड भी बाहर नहीं आ रहा होता है। और जब भी मैं इन टॉपिक्स पे बात करती हूँ, द होल कॉन्वर्जेशन जस्ट फ्लोज। और एक नई चीज़ हो रही है कि मुझे वर्ड्स ही नहीं याद आ रहे कुछ कुछ चीज़ों के लिए। वो सेंसेशन आ रहा है, वो फीलिंग आ रही है, बट वर्ड्स नहीं आ रहे। सो द डायरी एंट्री आई जस्ट वांटेड टू बी अ कम्प्लीटली कैंडिड, नेचुरल, वॉट एवर कम्स आउट ऑफ माई माउथ। और ये एंट्री बस आप लोगों के सुनने के लिए नहीं है, ये पर्सनली मेरे खुद के लिए भी है। क्योंकि जब मैं इन्हीं वीडियोस को और टाइम बाद देखूँगी तो मुझे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें मेरे अवेयरनेस में तब थी और कौन सी चीज़ें मेरे अवेयरनेस में अब है। बिकॉज जो वीडियोस मैंने पहले बनाई थी जब मैं एक ऐसे ही बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से जा रही थी, तो मुझे वो डिफरेंस भी पता चला कि क्या डिफरेंस है अवेयरनेस में, कि पहले वाली अवेयरनेस क्या थी और अभी वाली अवेयरनेस क्या है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द कंप्लीट वीडियो, एंड let me know your thoughts on these things, and I will keep making the diary entry videos. Bye bye, take care.